Good morning. Myself Varsha Sharma, Faculty of Botany in SS Subodh PG Mahila Mahavidyalaya, Jaipur. Today we will discuss a topic that is aseptic condition in plant tissue culture. This topic is related to your paper Molecular Biology and Biotechnology of B.Sc. Part 2nd. Firstly, we will discuss what are aseptic technique. Aseptic technique refers to a procedure that is performed under a sterile condition, and for this purpose we use many medical and laboratory techniques. What is the aim of aseptic technique? Plant tissue culture medium, it is very rich in nutrition, so microbes can grow very fast on it as compared to our plant, and this is harmful for the plant. Therefore aseptic conditions are to be maintained in the culture vessel. So we can say, to prevent the access of microorganisms during the plant tissue culture, we will use the aseptic techniques. These are the some possible sources of contamination, that are culture vessels, nutrient medium, instruments used during various operations, explant, operator, environment of the tissue culture laboratory. So these are the possible sources of contamination, and we have to maintain aseptic conditions at each and every step of plant tissue culture. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट ड्राई हीट स्टरलाइजेशन. फर्स्ट जो टेक्निक जो तरीका हम काम में लेते हैं, दैट इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, एंड फॉर दिस पर्पस वी विल यूज ओवन, एंड इन ओवन 160 to 180 degree centigrade temperature is maintained for 3 hours. Basically oven is used for glasswares like petri plates, beaker, uh, test tubes, etc., but it is not used for plastic wares. Next is the wet heat sterilization. For wet heat sterilization, we will use autoclave. Autoclave, it is an instrument which function at the principle of pressure cooker, in which we will maintain 121 degree centigrade temperature at 15 psi pressure for 15 to 45 minutes. Basically autoclave is used, or we can say wet heat sterilization is used for sterilization of media और plant tissue culture media, and basically for glasswares. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये भी है कि जब भी हम इनोकुलेशन करते हैं और हम एक्सप्लांट का स्टरलाइजेशन करते हैं, देन हमें स्टरलाइज्ड डिस्टिल वाटर की आवश्यकता होती है. तो वो स्टरलाइज्ड डिस्टिल वाटर जो है वो भी हम कहाँ पर प्रिपेयर करते हैं? ऑटोक्लेव, इसके लिए हम यूज़ में लेते हैं. दिस इज़ द ऑटोक्लेव. आपने देखा होगा जनरली जो भी प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है वहाँ पर आपको ऑटोक्लेव इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें हम बेसिकली ग्लास वेयर्स और मीडिया को स्टरलाइज करते हैं. नेक्स्ट इज द ऑटोक्लेव. जब भी हम काम में लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सभी जितने भी हम ग्रोथ हार्मोन्स काम में ले रहे हैं, मीडिया में हम जो भी ऐड कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें हम केमिकल्स को हम ऑटोक्लेव में स्टरलाइज कर सके. सो वी कैन से सर्टेन कंपोनेंट्स विच आर थर्मोलेबाइल लाइक जिएटिन, GA3, पेंटोथेनिक एसिड, एंटीबायोटिक्स, इनको हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते. ये बहुत हाई टेम्परेचर जो है उस पर एग्जिस्ट नहीं करते. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी विल यूज नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज फिल्टर स्टरलाइजेशन. फॉर फिल्टर स्टरलाइजेशन, filter membranes are used which pore size is 0.45 micrometer or less than 0.45 micrometer. These are the some filter sterilization techniques in which membrane filters are used. Next is the plant material. Plant material means explant sterilization. तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरह से आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लांट स्टरलाइजेशन? तो एक्सप्लांट स्टरलाइजेशन का मतलब होता है, क्योंकि आप, व्हाट इज द एक्सप्लांट? एक्सप्लांट इज अ plant part which we will use for the plant tissue culture technique. जो भी आप प्लांट का पार्ट ले रहे हैं तो आप कहाँ से लेके आए हैं? एनवायरमेंटल कंडीशन से लेके आ रहे हैं उसको, तो उसमें किसी भी तरह के माइक्रोब्स का कंटामिनेशन हो सकता है. तो जब भी हम उसको इनोकुलेट करेंगे उससे पहले हम उसकी सरफेस को पूरी तरह से स्टरलाइज कर लेते हैं. फॉर दिस पर्पज वी विल यूज सम केमिकल्स दैट आर नोन एज सर्फेक्टेंट और सरफेस स्टरलाइजिंग एजेंट्स. मेनली we will use 70% alcohol and 0.1% HgCl2 solution for as a surfactant, but many times we also use NaNO3, AgNO3 solution or bromine water, hydrogen peroxide for this purpose. Next is the plant tissue culture lab.
प्लांट टिश्यू कल्चर लैब को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जिससे कम से कम कंटामिनेशन हो। तो बेसिकली इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आउटर पार्ट हो गया और एक इनर पार्ट हो गया। आउटर पार्ट इज मेड अप ऑफ मीडिया रूम एंड वॉशिंग रूम. Media room, it is used for media preparation, and washing room is used for generally cleanness, and autoclave also use in also put in washing room. Next is the transfer area and culture room. It is present in inner side of the room. ट्रांसफ़र एरिया जो है बेसिकली यहाँ पर हम यूज़ में लेते हैं इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज LAF. LAF जो होता है इट इज़ यूज फॉर इनॉकुलेशन पर्पज़. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनॉकुलेशन? इनॉकुलेशन का मतलब होता है टू पुट और एक्सप्लांट इन प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम. हमारे एक्सप्लांट को जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम में रखते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनॉकुलेशन. और जब भी इनॉकुलेशन का प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए हम हमेशा क्या यूज़ में लेंगे? लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट. दिस इज़ द लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट विच इज़ यूज फॉर इनॉकुलेशन पर्पज़. यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें ये हैपा फिल्टर्स बने हुए हैं. ओके, दिस इज एक्राइलिक शीट, दिस इज गैस बर्नर और स्प्रिट लैम्प एंड दिस इज वर्किंग सरफेस. अब ट्रांसफ़र एरिया या हम बात कर रहे हैं लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट. तो आपके क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ LAF, कि LAF में ऐसे क्या कैरेक्टर्स, क्या फीचर्स होते हैं जिससे वहाँ पर एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन होती है. तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट हैपा फिल्टर्स. तो हैपा फिल्टर्स क्या होते हैं? हैपा स्टैंड्स फॉर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, एंड दीज हैपा फिल्टर्स रिमूव्स impurities which are larger than 0.3 micrometer. Therefore the air coming out of these is clean. तो एयर को जो बाहर से कंटामिनेटेड एयर है उसको पूरी तरह से प्योरीफाई करके और ये वर्किंग एरिया तक पहुंचाता है. नेक्स्ट इज द यूवी रेडिएशन. देयर आर यूवी लाइट प्रेजेंट इनसाइड द चैम्बर. तो जब भी हम काम करेंगे बिफोर यूजिंग द लैमिना एयर फ्लो कैबिनेट वी स्विच ऑन दिस यूवी लाइट. बट हमेशा हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप यूवी लाइट ऑन करते हैं तो उस समय आप कभी भी एक्सप्लांट को वहाँ नहीं रखते हैं और आप खुद भी वहाँ पर खड़े नहीं रहते हैं बिकॉज इट कॉजेज म्यूटेशंस. ओके, नेक्स्ट जो थिंग हम काम में लेते हैं इसमें दैट इज़ फ्लेम स्टरलाइजेशन. फ्लेम स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी हम इनॉकुलेशन कर रहे हैं तो इनॉकुलेशन करने से पहले हर बार हम हमारी फॉरसिप को 70% अल्कोहल में डिप करके स्पिरिट लैम्प पे उसको गर्म करते हैं और उसके बाद में हम उसे एक्सप्लांट को पुट करके उससे उठाएंगे और उसके बाद में मीडिया में रखेंगे. तो हर बार आप इनॉकुलेशन करने से पहले फ्लेम स्टरलाइजेशन करते हैं एंड फॉर दिस पर्पस वी विल यूज़ गैस बर्नर और स्पिरिट लैम्प. इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ध्यान रखते हैं. हम हमेशा अच्छे से जो हमारे हैंड्स हैं उनको स्पिरिट से क्लीन कर लेते हैं. जितनी भी एसेसरीज हमने पहनी होती है उनको हम उतार देते हैं, बैंगल्स है, वॉच है, रिंग्स एक्सेट्रा. इसके अलावा जब भी आप वर्क करेंगे तो जो वर्किंग बेंच होती है उसको अच्छे से स्पिरिट से आप उसको वाइप ऑफ कर लेते हैं. नेक्स्ट इज़ द ग्रोथ रूम. ट्रांसफ़र करने के बाद में जो हमारे कल्चर होते हैं उनको हम कहाँ रखेंगे? ग्रोथ रूम. ग्रोथ रूम और कल्चर रूम. ग्रोथ रूम और कल्चर रूम यहाँ पर आप देख रहे हैं. इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारी कल्चर रैक्स आपको दिखाई देती हैं. दीज आर द कल्चर रैक्स. ओके, टिश्यू कल्चर ट्रॉली और रैक्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, फोटो पीरियडिक टाइमर यहाँ पर लगा हुआ होता है. इसके अलावा ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कंट्रोलर यहाँ पर प्रेजेंट होता है. तो अलग अलग प्लांट्स के अकॉर्डिंग जो भी प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन सेट की जाती है जहाँ पर प्लांट्स को कल्चर करने के लिए रखा जाता है. नेक्स्ट इज़ द ऑपरेटर. एक जो पॉसिबल कंटामिनेशन का सोर्स हो सकता है दैट इज़ ऑपरेटर. हम खुद जो हम वर्क कर रहे हैं तो जब भी हम काम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि वी शुड क्लीन हैंड्स एंड फोर आर्म प्रॉपरली बिफोर स्टार्टिंग द वर्क. इसके अलावा जो हमारे हैंड्स होते हैं उनको हमें अच्छे से सैनिटाइज कर लेने चाहिए. इसके लिए हम स्प्रिट यूज़ में ले सकते हैं, अल्कोहल काम में ले सकते हैं या सैनिटाइज़र काम में ले सकते हैं. इसके अलावा हमें सर्जिकल मास्क जो होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए. वी मस्ट वियर हैंड ग्लव्स. ओके, इसके अलावा हमें लैब कोट पहनना चाहिए जिससे कि कंटामिनेशन होने के चांसेस कम से कम हो. और जो मेन चीज़ ये भी ध्यान रखने की होती है कि जब भी आप LAF पे बैठ के वर्क करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए. तो प्रेजेंस और अदर पर्सन्स इन और नियर द ट्रांसफ़र एरिया शुड बी मिनिमम.